Good evening, everybody. Namaskar, sir. Nitin sir is just Sir, logged in. good evening. नमस्कार Good morning, नमस्कार everyone. Good evening. नमस्कार Yeah. नितीन सर. गुड मॉर्निंग गुड इव्हनिंग सगळ्यांना. Nitin. नमस्कार हा, भागवत नमस्कार नमस्कार नमस्ते सर. नमस्ते Nitin sir. नमस्ते. ऐकू येत आहे ना क्लिअर? हो sir. ऑडिबल आहे ना? काय इश्यू Yes, नाही sir. ना? Yes, sir. Yes, sir. All right. So, since everyone is joining in, a quick rundown of our event. क्या expected है हमें इधर is basically we will start our session right now with our tradition of YVN with three ओंकार्स and prayer. उसके बाद होगा speaker introduction. हम पूजा मैडम will introduce our speaker today. फिर मेन लेक्चर होगा नितिन सर का and then Manisha will convey vote of thanks. Also we do have a question answer segment at the end. तो आपको कोई भी questions रहेंगे सेशन के दौरान प्लीज मेक यूज ऑफ द चैट बॉक्स ताकि हम आपके सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में एड्रेस करें एंड देन वी विल ऑफिशियली क्लोज द सेशन एट 6 p.m. राइट. Sonali, over to you. Let's go ahead and get started. Yeah, thank you. Thank you, Dipti. Namaskar, sir. And namaskar, everyone. Those who are present, I welcome you all here. And we start with our three Omkars and prayers as usual, our tradition. So, सबसे पहले सीधा बैठ जाएंगे. Keeping your spine and neck in one straight line. Shoulders bit back but relaxed. Elbows closer to the body. Keep your chin parallel to the floor. Gently close your eyes and focus on your breath. Inhalation, exhalation is going on. Try to keep your body stable, steady, kaya stairyam. Let's begin by chanting of three Omkars followed by prayers. Inhale deeply. Om. 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 ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Keep your eyes closed. Feel the effect of Omkars and prayer on your body and mind. Gently open your eyes. And over to you, Pooja ma'am. Sorry, Sonali, give me 1 minute, please. Sorry, Pooja. All the Dipti, one participants small are request. request. Hello. One हाँ small sir. request. हाँ sir. Please make me co-host. Yes sir, I'll make you. Please. Request to all the participants to keep your cameras open because it's a practical session and we would definitely like to make sure that you're practicing it correctly. So please keep yourself muted throughout the session, but videos are on. Thank you. Pooja, over to you. Pooja, you are muted. Yeah. Resume I'll start the recording. Please do not Yeah. touch any Just of the one settings, moment. anyone. Yeah. One moment, please. Yeah. Yeah. Recording start केलेलं आहे. So. Video off.
Sorry, you may continue, please. Okay, so here we are, Nitin Tavde sir, as our speaker today. He has completed his MSc in Yoga from Eswasa University. He has multiple diplomas from varied universities and institutions like Sankhya and Yoga, Diploma in Indian Wisdom Traditions, Bhagavad Gita, Diploma in Vyasa Bhashya, and then he has completed YTTC from YVN, YNTC from YVN, IYC Yoga Instructor Course from Esvyasa, and his association with Yoga Vidyaniketan goes way far back. He is co-organizer and faculty member of Yoga Natural Living and Naturopathy Diploma course. He is sub-editor of Yogavarta monthly publication of YVN. He is on managing committee of Yoga Vidyaniketan. He is sub-editor of Yogavani monthly publication from IYA, which is Indian Yoga Association. He is certified Yoga Chikitsak from IYA, which is Indian Yoga Association. He is currently done translation of 2 books published by Yoga Vidyaniketan, namely Dhyana Sadhana and Nisargahar from English to Marathi. He has a very active contribution in works in Marathi Vishwakosh. And currently, in spite of all these feathers in his cap, he is continuing to pursue studies in Ayurveda, Padartha Vijnana, Ayurvediya Padartha Vijnana. So, with this kind of caliber, we approached Nitin sir to come up and giving him some really abstract and difficult subjects. But believe me, Nitin sir, with his humble personality, made us aware that it is and made us accept the fact that it is very crucial to improvise on your simple daily activities like breathing in order to function properly, in order to proceed for pranayam practices. Thank you, Nitin sir. Over to you. Thank you. Thank you very much. I was not expecting this big introduction, as I can see many familiar faces over here. So first of all, welcome everybody on this forum, and I sincerely thank the organizers for inviting me on this forum. Thank you very much, first of all. So let us directly begin the subject. The subject is hidden power behind your breath. Okay. So breath is the most common thing, and the thing is actually a very important, but most of us are not much aware or rather unaware of this breathing process throughout our life. Many people don't even understand what is breathing, because it's an involuntary function. Involuntary function controlled by the autonomic nervous system. I'll just give you what is unnecessarily giving the scientific jargons. I'll just explain what is autonomic nervous system briefly in 2 sentences. There are 2 parts of the nervous system, autonomic and somatic. Somatic means whatever that is under our control, voluntary control. I am just lifting this mobile voluntarily and my actions are voluntary. But some autonomic nervous system, the controls are not under
our means the actions are not under our control. For example, our heart rate, we cannot control. Circulation, blood circulation, we cannot control. Digestion, we cannot control. Metabolism, we cannot. Same is the case of breathing. Breathing we cannot control. Okay, to some extent we control definitely, but breathing also comes under autonomic nervous system, which is involuntary. Hence, we are taking it simply granted throughout our life. So, what are the hidden powers? I know most of us must be knowing, but just giving you little insights to this so that everybody knows it. Okay. So, what are these hidden powers? Let us understand. First, we will discuss about that this is a involuntary system, but can be made voluntary whenever we wish to some extent. That is the first power, hidden power. All other involuntary actions we cannot control, but breathing is such a thing that if we wish, we can control it to some extent. Simple, eh? You can just think of it. You are going somewhere and some stench is coming. Means it's a bad odor is coming. You can hold your breath for some time. Or if some good aroma is coming, you can take it. So this breathing you are controlling to some extent. That is the one most important. And if we are using it rightly, we can master many things. That is the first hidden power. The second is that mind and breath are closely related. Most of you know that how mind and breath are closely related. Extremely important factor into this. Mind can be controlled by breathing, and breathing can be controlled by mind. They are complementing each other. Okay, one controls other, the other is under the control of this. That is the most important thing. And our great masters, the rishis and munis and the masters of yoga, found this connection between the the breath and the mind, and they designed many beautiful things, practices, breathing techniques, and that is in Bhagavad Gita also, in the chapter 6, verse shloka number 34, you will find Arjuna is asking Sri Krishna that shloka I'll just read. Chanchalam hi manat Krishna pramati balavadrudam tasyaham nigraham manne vayo riva sudushkam. What he says that Krishna, this breath is so, means it is not under our control. It's like you cannot catch a wind. The breath is like that. That is what. Okay. Thank you. तो he said कि नहीं ये मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है. And then Krishna answers him, Bhagavan Krishna answers him that vairagya and with the detachment you can control this, but that is not the subject. So it's like a wild animal, है ना, जो जंगली एनिमल है उसको कंट्रोल में लाना डिफिकल्ट है. सेम इज द केस विथ अवर breathing. Breathing cannot be, mind cannot be controlled, but this mind can be controlled through the breathing. That is the thing they have understood. Okay, and with this excellent gift, that mind can be controlled to breathing can be controlled to some extent. The rishis and munis, they designed these practices to control the mind, and with mind, so that is the second hidden power. Okay, and they used it to such an extent for designing further practices to ultimate goal of Kaivalya and Moksha. ये प्राप्त करने के लिए this breathing and mind का connection they have used. Okay. The third most important factor is that if you suspend your breathing, suspension of a breath balances the oxygen and carbon dioxide in your blood. We'll discuss it definitely in the due course. चलते चलते हम बोले ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ यू नो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये ब्लड में उसका जो परसेंटेज है, by doing that many things can be observed. So this is the third hidden power. The fourth hidden power is little bit different. That is when we are breathing, we are taking in abundant of prana shakti. Obviously, science doesn't believe and accept
the prana as any entity. Okay. But our science, the Vedic science, they believe the prana is very important. You find many references of prana, Prashnopanishad, and all these Upanishads, you find the references of the prana. The prana we are taking, okay? They don't believe the prana shakti, but let us see. They say you cannot show prana, that is why we cannot accept the scientists say. Okay, there are many things. Electricity you cannot show, magnetism you cannot show, and gravity you cannot show, but still it is accepted by the science. Okay, slowly they will accept. And the most important thing, mind is accepted by the science. Can you show mind where it is? You cannot show mind. Okay, so this is the thing that we are taking. But don't confuse prana and breath. Okay, क्योंकि हम प्राण लेते हैं मतलब we are taking वायु inside, oxygen inside, giving out the वायु outside. प्राण लेते हैं इसका मतलब प्राण बाहर नहीं छोड़ते एक्सलेशन के टाइम में, बाहर गए तो गया गत प्राण, है ना? सो दिस वे आर, और इसके लिए वो प्रश्नोपनिषद हैज गिवन वेरी गुड कि प्राण इज एवरीवेयर, इट इज ऑल परवेसिव. एंड उसके लिए देयर इज वन ब्यूटीफुल वर्स इज दैट प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्यं प्रज्ञाश्यम विधेयिन इति. This is a very famous verse given in the Prashna Upanishad. Okay, the Prashna Upanishad. That means prana is everywhere. Tridive, matlab in all three lokas, the prana is there. And this prana shakti we are taking. And then most of you know that this prana shakti is flowing through our 72,000 nadis. They are the energy channels. Okay. Okay, we are not going to discuss all these things. But what is most important is, even though it's an abstract thing, this prana shakti is there, which we are taking inside. And another most important hidden power of the breath is, it is directly connected and deeply connected with our emotions. Whatever emotions we express, you will observe with your emotions, your breathing pattern changes. If you are angry, your breathing pattern changes. If you are joyous, your breathing pattern changes. If you are sad, mourn, your breathing pattern changes. So these are the few hidden powers which we will discuss at length. Okay, we are going to discuss at length and I will explain. And at the end, if we find some time, we'll tell the practical answers. I intend to do, but I am going a little bit slow because ये सबको सिप होना चाहिए. सिप होगा तो ये इसका सब मजा है. अदरवाइज मैं कुछ बोलते रहूं, आपके सिर के ऊपर चले जाएंगे, बिकॉज थोड़ा सा साइंटिफिक सब्जेक्ट भी है. तो टाइम टू टाइम आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, एवरीथिंग. सो पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. आई विल जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन. आर यू ब्रीदिंग through your left nostril or right nostril? I'm just asking. Most of us don't know. And it's not easily possible also. Whether we are breathing through your right nostril or your left nostril, कैसे कर रहे हैं, कौन से nostril से? We'll ask this question again in the due course. Okay? But most of us do not know how we are breathing. Okay? Not because it is unimportant. This is very, very important. But since it's a involuntary process, we have taken it for granted. कि concept इससे क्या ले रहा है breath doesn't matter, ऐसे हमको लगता है, but it matters a lot. थोड़ा आगे चल के then I will explain it. तो breath कैसे आ गया है? Right now, right from the point we are born, we have breathed our first. And at the end, when we'll breathe our last, this life will be, mortal life will be ended. So in between these two breaths, that first inhalation and the last exhalation, lies the entire lifespan. So much important is the breathing process. Okay? That is very, 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 very important. And Vidan in this breath is the powerful key. What is that powerful key? That is to your mind, to your health, to your well-being, to your spiritual growth, even to your inner growth. This is all depending upon this breathing pattern.
How to make best use of it, we are going to learn now. Okay. So this hidden gift of breathing. So let us understand this. Breathing is autonomic. I told you it is automatic है, कुछ नहीं होता है. It goes on and it controlled by the autonomic nervous system. Automatically हम breathing करते हैं, कुछ नहीं. अभी भी बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं. The breathing is going on. Without our knowledge, the breath is. We don't have to think for the breathing. ब्रीथ करने के लिए हमको कोई विचार करना नहीं पड़ता है. वी आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग. इवन इफ वी स्लीप, हम सो जाते हैं तो भी ब्रीदिंग चालू ही रहती है. मतलब ब्रीदिंग इज कंटिन्यूअस. बट इट्स एन एक्सेलेंट गिफ्ट. उसमें क्या है कि व्हेनेवर वी विश वी कैन कंट्रोल इट टू सम एक्सटेंट वॉलंटरीली. मतलब हमको जब भी चाहिए तभी हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं. सो व्हाट इज दिस? द ब्रीदिंग इज द ब्रिज. ब्रिज बिटवीन व्हाट? Your body and your mind. Body and mind. Body and the prana which is flowing within you. That is breathing is the bridge we can call. Conscious and the unconscious. Unconscious मतलब जब भी हमारे without our knowledge जो breathing चल रहा है, that is an unconscious thing. But consciously जब भी breathing करेंगे तो that is a bridge. So bridge between the conscious things and unconscious things. That is very. So इसलिए हठ प्रदीपिका में ब्यूटीफुल श्लोक दिया है. कैसे लिखा है उन्होंने? चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवे. निश्चलम भवे है ना. योगी स्थानुत्व आपनोति ततो वायु निरोध. मतलब ब्रीथ को कंट्रोल करके द ब्रीथ मूव्स, द माइंड मूव्स, है ना. जैसे ब्रीदिंग चलेगी वैसे माइंड चलेगा. माइंड को कंट्रोल करो तो ब्रीदिंग, ब्रीथ को कंट्रोल करो तो माइंड के ऊपर कंट्रोल. दैट इज व्हाट दिस. आई विल गिव यू वन सिंपल एनालॉजी, वेरी सिंपल. एक छोटा सा उदाहरण देके हम ये स्पष्ट करते हैं. इमेजिन अ लेक, बहुत बड़ा लेक, एंड जस्ट थिंक द विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट. एज द विंड ब्लोज द वाटर इज डिस्टर्ब, देयर आर वेव्स, है ना. द विंड स्टॉप्स, द वाटर इज स्टिल. शांत हो जाता है ना. सो योर ब्रेथ इज लाइक द विंड एंड योर माइंड इज लाइक द लेक. यू कंट्रोल द विंड, यू काम द लेक, है ना. ऐसे मतलब द मोमेंट, ये कनेक्शन अभी इससे अच्छे याद में आएगा कि जब भी हवा बहती है तो लहरें होती है तालाब के ऊपर. हवा शांत हो जाती है, तालाब भी शांत हो जाता है. सो ब्रेथ इज द विंड, mind is the lake. Okay. And they discovered something very powerful. जो yoga masters है, they discovered something very powerful. If the mind is disturbed, breathing becomes irregular, है ना. Immediately irregular होता है. The breathing is controlled by the mind, it becomes calm. This is not philosophy. This is not philosophy. ये कोई philosophy नहीं है. This is a direct experience है, and that is what they are put for. ऐसे करते हैं. Just another example लेते हैं. The moment you are angry, what happens to your breath? You cannot become angry. Your breath goes on, है ना. मतलब हमारा जो सांस चलती है वो फूल जाती है. If you are angry, गुस्से में आ जाते हैं तो. सही है ना. So that is how it is connected. The moment you are cool, the breathing comes down. हार्ट रेट तुम्हारी कम आ जाती है. और चैतन्य सन करते हैं क्लास में, यू आर वेरी पीसफुल एंड शांत रहते हैं तो ब्रेथ कैसे चलता है? ऑब्जर्व इट. द ब्रेथ इज वेरी गुड, द माइंड इज वेरी गुड, एवरीथिंग. सो ये कनेक्शन इससे अपने को अच्छे से याद आएगा, है ना. तो क्या उन्होंने पूछा है ना, कैन वी यूज दिस ब्रीदिंग टू इन्फ्लुएंस द माइंड? Yes, definitely it can be done. And that is pranayama. By influencing the breath, you can, by using the breath, you can influence the mind. And that is the technique of the pranayama. है ना. इसलिए महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद में 49 वर्ष में क्या बोला है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास
योर गति विच्छेद प्राणायाम, उन्होंने ऐसे डेफिनेशन दी है। अभी उन्होंने उसके पहले आई जस्ट ब्रीफली आई जस्ट एक्सप्लेन, उसके पहले 2.46 में he gives the definition of the आसन, स्थिरम सुखम आसन। What he says, आसन should be, हम क्या बोलते हैं उसको कि आसन should be स्थिर। Let us think otherwise, आसन तो स्थिर है, okay, you are attaining the final posture and you are, what I am saying, at that same time your mental condition should be that your breathing also should be so controlled along with your body, you should find सुख स्थिर हो जाना चाहिए, that pleasure should be steady। स्थिरम सुखम आसनम में बॉडी स्थिर होने का नहीं है, द प्लेजर है, सुख जो है, और सुख अगर स्थिर हो जाएगा देन यू विल अटेंड एवरीथिंग। फिर इसके बाद में और दो देते हैं, अनंत समापत्तिभ्याम का और ततो दंडाभिनाथ का, वो दो और भी सूत्र डाल के फिर वो बोलते हैं कि तस्मिन सती, कि ये दो होने के बाद he gives the definition of प्राणायाम। and ये डेफिनेशन इतना सिंपल डेफिनेशन उन्होंने दिया है ना, व्हाट इज दैट डेफिनेशन, योर गति विच्छेदा, मतलब सांस की गति का ही आलंबन चेंज करके उसका, दैट इज प्राणायाम। ही इज नॉट टेलिंग कि ऐसे बैठो, पद्म मुद्रा में बैठो या योग मुद्रा में बैठो, ऐसे कुछ लगा दो, पाई निरेक्ट हम बोलते हैं। ही इज नॉट टेलिंग, ही इज नॉट आस्किंग फिर कैसे लेना है, क्या अनुलोम विलोम करना है, ये करना है, नथिंग, ही इज नॉट गिविंग, ही इज ओनली द वेरिएशन इन द ब्रीदिंग is pranayam. Finish. He finishes all that thing because he is linking that pranayam with the mind. Mind के साथ करते हैं हम आसन करते हैं, we are focusing on our physical body. No, at that time also our focus should be our breath. Then it will connect with your mind and then only you will reap the benefits. तो आसन सिर्फ बॉडी पोस्चर अगर बन जाए तो जिम्नास्टिक्स हो जाए। वी डोंट वांट टू डू दैट। इफ यू वांट टू ब्रिंग इट आसन टू योग, माइंड आल्सो शुड बी इन्वॉल्व्ड एंड टू ब्रिंग द माइंड विद इन दैट यू हैव टू फोकस ऑन द ब्रेथ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए वो प्राणायाम के बारे में महर्षि पतंजलि इतना ही बोल देते हैं कि सांस की गति का ही नियमन करना मतलब प्राणायाम। वो कैसे करना, क्या करना, see in the entire yoga sutras no, Patanjali is only giving the मतलब वो बोलते हैं कैसे करना, is not giving instructions, he is telling the facts कि ये फैक्ट है, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। he is not asking कि सुबह उठो, जल्दी उठो, ये करो, प्राणायाम करो, he is not asking what is pranayam, he is telling, he goes ahead। what is asan, he tells, he goes ahead। everything he just tells, to do it or not do it, he is not telling that we have to do it. That is it. So what is the purpose of pranayam, what we are doing? Since we are talking about breathing, let us understand what is pranayam. So pranayam is benefits क्या है, तो it's a mental stability, emotional balance, pranayam के साथ में आते हैं। Preparation for the meditation, this will take, definitely will take, कि meditation के लिए कैसे prepare करना है, क्या करना है body, that is the one motive of this hidden power। Then spiritual growth, obviously spiritual growth hoga, then only you will attain this ultimate goal। and remember the purpose of yoga sutras is not health benefits or therapy, ये कोई उसका पर्पस नहीं है। इस पर्पस इज ओनली द कैवल्य। इसलिए वो चित्त को लेके फाइनल तक महर्षि पतंजलि चित्त की ही बात करते हैं और कैवल्य समाधि के तरफ जाते हैं। ये बीच में लगने वाले जो स्टेशन है ना, ऑल हेल्थ स्टेशन है, क्योंकि बॉडी स्थिर रखने के लिए एंड व्याधि दूर करने के लिए नहीं हो, याद रादर प्रिवेंटिव, हम आसन प्राणायाम करते हैं ताकि मेडिटेशन के लिए तैयारी हो। इसके साथ में जो बाय प्रोडक्ट आते हैं ना, दे आर ऑल हेल्थ बाय प्रोडक्ट। ही इज नॉट गिविंग कि ये थेरेपी है, थेरेपी वगैरह बाद में हमने डिस्कस किया, इसमें से निकाल के यस इट इज गिविंग the therapeutic benefits, otherwise Patanjali is not asking you ये therapy करो, ये therapy, okay? He is only taking you to the
अल्टीमेट गोल ऑफ कैवल्य, मोक्ष की तरफ लेके जाने के लिए वो बात करते हैं। अभी हम लोग एक अगेन द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड, again I am asking the same question which I asked some time back. Do we breathe equally through both nostrils? हम दोनों नोस्ट्रिल, सोनाली तो मालूम ही है, सोनाली को तो सोनाली बोलेगी। ओके, so do we breathe equally through both nostrils? Most people will think yes, we breathe through both nostrils equally. Equally, yeah? The question is equally. We are breathing through both nostrils, no doubt, but equally is the main thing. Answer is no. The truth is no. We are not breathing equally. And to understand this question which I am giving, why we are not breathing equally through both nostrils, let us understand little bit about the anatomy of our nose. So थोड़ा सा scientific anatomy के लिए आते हैं. So what is this anatomy of the nose? ये तो क्या है? Let us understand. Externally we have got two nostrils, right? Right nostril, left nostril, we have got. Okay. So कैसे चलता है? It is separated by a small cartilage that is called a septum. आप करते हैं ना जलनेती, लेफ्ट से डालते हैं तो राइट से बाहर आता है, वो सेप्टम को टर्न मार के यहाँ से आता है, राइट से डालेंगे लेफ्ट से आता है. दैट इज द थिंग. सो स्मॉल सेप्टम, फ्यू सेंटीमीटर्स, ज्यादा भी नहीं है लंबा. वेसन नेती करते हैं तो यहाँ से डाल के यहाँ से करके उसको करते हैं, है ना. इसके बाद में आफ्टर दिस इट इज ओनली वन चैनल. खाली यहां से ये दो है, इसके बाद में इट्स अ कंटिन्यूअस चैनल. देन द विंड पाइप, द ट्रैकी गोज, then branches into two bronchi, goes to respective lungs, right and left. Okay. तो ये सब होने गए, तो ये दो नोस्ट्रिल देने का क्या पर्पज है? आगे जाके तो सिंगल चैनल से ही जा रहा है, तो ये दो नोस्ट्रिल का क्या मतलब क्या है? बट आवर एंसेस्टर्स, द योगा मास्टर्स, दे न्यू नेचर डजंट डू एनीथिंग विदाउट एनी पर्पस. ऐसे बिना पर्पस के लिए कुछ नहीं, नहीं तो हमारे ऊपर एक सिंग होती थी अगर कुछ नहीं है तो, है ना. तो ऐसे नेचर इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग विदाउट एनी पर्पस. देयर मस्ट बी सम पर्पस. टू फाइंड आउट व्हाट दे डिड, डेफिनेटली दे मेडिटेटेड, कॉन्टेम्पलेटेड ऑन दिस कंटिन्यूअसली. ये कॉन्टेम्पलेशन करके, ध्यान करके, दे फाइंड आउट द आंसर कि ये क्या होता है ना. I'll just briefly tell you how this happens. Meditation है ना, gives you almost all answers. Now today, science is giving, you are conducting some experiments and finding out. Let me tell you, थोड़ा सा divert करके subject I'll explain you so that सबको अच्छे से पता चलेगा. Meditation से you will get all answers because हमारी जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है ना, it's a tremendous capacity. All knowledge is there. We are using hardly 2 to 3% of our brain capacity. It has got all knowledge within us. So ये पुराने हमारे जो ancestors से बोलते हैं, the knowledge is all pervasive. How you explore it? जितना meditation, contemplation करके maximum brain का use करेंगे, then we are getting answers. खाली बात नहीं, I'll give you 2-3 examples, and that too from the, not from our Veda से कुछ example नहीं. I'll give you the examples of the scientific thing. You know everybody the Archimedes की story. Archimedes was given that problem to solve. How much gold is there? It was practically impossible to find out. उसमें कोई adulteration किया है राजा के, जो उसका जो crown था उसमें. It was practically impossible. He was thinking, and Archimedes find out करने के लिए, वो मेल्ट करने का तो चांस नहीं है, और कैसे फाइंड आउट करना, कोई डिटेक्शन के लिए आज के जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नो इंस्ट्रूमेंट. सो व्हाट वाज द इंस्ट्रूमेंट? बेस्ट इंस्ट्रूमेंट वाज टू थिंक. सो ही meditated, and one fine day, the story goes like that, he sat into the tub, the water came out, forget. But he found out that answer through his meditation. Okay. And that meditation means he was continuously, day and night, he was thinking, and he got that answer. And
that incident of sitting into the tub, एक just incidents हो गया and he got the answer. Then आगे की story बोलने का जरूरत नहीं है. Another story I will tell you about Isaac Newton. हम सब बोलते हैं he saw the apple falling. It was not that easy. Apples were falling since ages. इसके बाद में भी एप्पल पड़ते हैं. He was thinking on this problem continuously, day night, खाना पीना भूल जाके, all the time, why it happens, and then he found out through that brain की जो faculty है उससे. I'll give you one more example and then we'll come back to our subject. There is a scientist known by Kekulé. Benzene ring जो है ना, तो ये सब केमिकल फॉर्मूलाज तो सबको पते थे, लेकिन ये बेंजीन का जो है ना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला वो फॉर्मूला जो बेंजीन रिंग का, अदरवाइज केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं और लिनियर लिखते हैं, तो ये सर्कल में लिखना इट वाज वेरी डिफिकल्ट. Continuously he was thinking and he said that in his dream he saw the snakes, one snake catching the tail of the another snake, and he saw the snake making a circle and then he did it. That is a story, forget. But through his mental faculty, thinking. So the mind is so powerful and this mind can get you anything. But at the same time, this mind is very wild. It runs here, there, helter skelter. कुछ तुम्हारी पकड़ में नहीं आता, तो उसको पकड़ने का क्या है? The breath. With your breathing, you can control the mind. Once you control the mind, and that is how the pranayam, meditation, all these practices are designed. Okay? समझ में आया ना? So this is one thing that you have. And once ये कैसे है ना, they understood कि ये नोस्ट्रिल और ये नोस्ट्रिल के पीछे नेचर का डेफिनेटली कुछ पर्पस है. And then they found out. कैसे फाइंड आउट किया? आज की तरफ नहीं. How they found out? They said कि there are two energies running. One energy is prana and then the another energy is mental energy. Prana and mental. And these two are running between your two noses. Okay? Mental energy, prana energy, which is flowing through 72,000 nadis. The mental energy, which is also there. तो ये दो एनर्जी है. And when these energies are in a balanced state, दोनों अगर हार्मोनाइज है, दोनों के अंदर समन्वय है, then you get the sound health and the homeostasis. अभी again I am stumbling on another thing कि homeostasis. Homeostasis क्या होती है? Let me explain. तो homeostasis मतलब this body of ours is an amazing thing. इतनी ब्यूटीफुल है ना कि बॉडी आपको कभी भी बीमार पड़ने नहीं देगी. नेवर, इट विल नेवर लेट यू फॉल इल. हम लोग बोलते हैं मैं बीमार हो गया, मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ द नेचर एंड अगेंस्ट द बॉडीज फंक्शनिंग. आप कुछ भी करो, बॉडी आपको सह लेती है. सिंपल एग्जांपल देता हूं. बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, वट एवर यू से. You are going to extreme conditions, heat 48 degrees, तापमान बाहर का है, body is maintaining temperature at 37. कितना भी हो, perspiration आएगा, पसीना सूख जाएगा, बॉडी को ठंडा करेगा. ठंडा इसमें जाओ, very cold situation, if you are going into the very cold situation, you start shivering. That shivering means the muscles are vibrating. And this vibration is creating the heat. So this is one simple example of homeostasis. There are many examples. If you are eating something bad, body will throw out, dysentery हो जाएगी, निकल जाएगा. If you are eating something bad, vomit से भी बाहर निकाल के देगी. Body will not let you do up. Only when you are taking it to the extreme, तो बोलेगी बस अब नहीं सहा जाता है. And then only you will fall in. तो मेंटेन करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है. यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व द सिंपल रूल्स एंड यू हैव अ गुड हेल्थ.
सो ये दोनों का जो संबंध है ना, तो इस बैलेंस रहेगी तो एनर्जी, तो होमियोस्टेसिस इज मेंटेन। तो उन्होंने कैसे किया, ये दोनों का सोचने के बाद, इफ यू वांट ये दोनों मेंटल एंड प्राणिक एनर्जी दोनों में बैलेंस लाने के लिए, आई टेल यू वन मोर थिंग। हमारे वैदिक साइंस में ना, इनिशियल इसमें तंत्र ट्रेडिशन है। अभी जो तांत्रिक वगैरह सोचते हैं तो हम लोग इमीडिएटली सोचते हैं कि तांत्रिक मतलब वो कोई जादू टोना करने वाला, नथिंग लाइक दैट। तंत्र मेडिटेशन एंड द तांत्रिक ट्रेडिशन इज वेरी हाई ट्रेडिशन। इट इज टोल्ड बाय शिवा टू पार्वती। इसमें आजकल के जमाने में तांत्रिक बोले तो कुछ जादू टोना ये करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले, नथिंग लाइक दैट। तंत्र ट्रेडिशन इज हाई। तो उसमें स्वर योगा करते हैं, स्वर योग। इफ यू फाइंड शिव स्वरोदय में इसके रेफरेंसेस मिलते हैं, एंड देयर दिस टेक्निक इज वेरी इन डेप्थ एक्सप्लेन। राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, ये कैसे होता है, इसका तुम्हारे ऊपर क्या परिणाम होता है, एवरीथिंग इज गिवन। एंड टुडेस प्रेजेंट सिनेरियो में गुरु शिवानंद जो है, उन्होंने इसके ऊपर और डीप में लिखा है। बिहार स्कूल ऑफ योगा के बुक्स है स्वर योगा के, एंड सम टेक्स्ट आर देयर। सो देयर इट इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। सो इसका मतलब क्या है कि दोनों में बैलेंस रहेगा। एंड यू विल सरप्राइज टू नो, at given moment we are breathing, at any moment we are breathing through one of the nostrils dominantly, and after some time it is switching to another nostril. Approximately 90 minutes, 1.5 hours somebody said. So 90 minutes का approximately ये period है कि तभी ये दो nostril switch होते रहते हैं। this switching, the cyclical switching है कि यहां से थोड़ा डोमिनेंट रहेगा, फिर यहां से होगा। इसको बोलते हैं नेसल साइकिल। साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं नेसल मीन्स रिलेटेड टू नोज, है ना, नेसल कंजेशन वगैरह बोलते हैं वैसे। तो नेसल साइकिल, सो दिस इज अ नेसल साइकिल कि इससे ब्रीदिंग दो जगह में स्विप होते रहती है। सो वी आर ब्रीदिंग फॉर अ वेरी वेरी ब्रीफ पीरियड during the entire day. We are breathing for a very small period through both nostrils equally. I'm talking equally. दोनों nostril से तो breathing होती है, but equally दोनों में से very brief period, and that is the period when we are achieving harmony in all our systems. So what is the proof for that? Scientifically also it is proven. Proven means there are evidences, scientific evidences. So it's very interesting to know the science का viewpoint भी जानना important है। Let us understand what science says. Okay? तो scientific viewpoint भी इसमें से देख लेते हैं। Scientific viewpoint में क्या है ना, 1895 में one physician, Dr. Richard Kaiser, his name is Richard Kaiser. He first found out that there we don't breathe equally throughout the day through one. Maybe he came across and he found out, and then he did research, and then he found out very interesting thing which was not given as per scientific way, but was known to our rishis and munis. He said in both our nostrils there are some bony projections, मतलब कुछ छोटे छोटे हड्डियों जैसे थे। इसको बोलते हैं कॉन्ची या कॉन्का, ऐसे उसका परफेक्ट ये है। दैट टर्मिनेट्स, नेसल टर्मिनेट्स में छोटे छोटे बोनी प्रोजेक्शन, और उसके ऊपर टिश्यूज होते हैं, और टिश्यूज को ब्लड सप्लाई होता है। सो थ्रू आउट द डे एक में ब्लड सप्लाई होगा, द मोमेंट टिश्यूज में ब्लड सप्लाई होगा द टिश्यूज विल स्वेल। जैसे स्वेल होगा तो यहां से समझो लेफ्ट में है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से हवा कम आएगी, और एट द सेम टाइम दूसरे जो राइट नोस्ट्रिल है वहां का डिकंजेशन होगा, ओपन होगा, सो राइट से डोमिनेंट होगा। आफ्टर सम टाइम ये स्विच होगा, राइट में फील हो गए ब्लड, लेफ्ट का क्लियर होगा,
So this way it keeps on switching. Today's science actually doesn't have a conclusive answer to this, why this particular thing is happening, why this is happening, that is proven. ये पक्का है कि ऐसे होता है कि राइट नोस्ट्रिल में ब्लड भर जाता है तो लेफ्ट ओपन होता है, लेफ्ट में भरता है तो राइट ओपन होता है, तो यहाँ से ब्लड हवा का फ्लो ज्यादा है यहाँ से. सो व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, आज के साइंस को पक्का आंसर नहीं मालूम है. ठीक है, आंसर नहीं मालूम है मतलब कैसे है ना कि इसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च नहीं होता है. रिसर्च रिक्वायर्स लॉट ऑफ सैंपल्स, देयर वी आर लैकिंग. इफ यू आर गेटिंग बहुत सारे सैंपल्स अगर मिल जाए एंड डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइम पे अगर ऐसे इसका स्टडी हो जाए तो डेफिनेटली दिस विल गेट प्रूव्ड. तो ये होता तो है, बट वन थिंग दे हैव फाउंड आउट, व्हाट दे हैव फाउंड आउट, राइट नोस्ट्रिल is connected to sympathetic nervous system, which is an activating nervous system. Left nostril is connected to parasympathetic nostril. इसको ही हमने जो बोला है ना, मून एंड सन, कूलिंग एंड हीटिंग, ये तो बोला है ना. सो हट का मतलब ही है ना, तभी ह मतलब सन, ठ मतलब मून, उन्होंने वैसे वहां ही बोला है सन एंड मून, हीटिंग एंड कूलिंग. उसी को हम लोग आज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं. That is the simple way. The sympathetic nervous system and parasympathetic. One is activating, another is cooling down. दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ये चढ़ गया, नीचे लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक आ गए. तो उसके पास अगर भी आंसर नहीं है ना तो भी ये डेफिनेटली है. और उसका एक और कंक्लूजन है, राइट नोस्ट्रिल का ब्रीदिंग का लेफ्ट हेमिस्फीयर से संबंध है एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल का ब्रीदिंग का राइट हेमिस्फीयर से. ऑल ऑफ यू नो कि जो हमारे राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर है, दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस. राइट का संबंध पर्टिकुलर थिंग से, क्रिएटिविटी और ऐसे मतलब आर्ट एंड इससे, इसका लॉजिकल थिंकिंग मैथमेटिक्स का लेफ्ट से. तो ये वो सब्जेक्ट नहीं है आज का, सो विल नॉट गो इनटू, बट डेफिनेटली these nostrils are connected to right and left hemisphere. But conclusively आंसर आज की घड़ी में तो उनके पास नहीं है. बट दिस इज रन, ये जो कंजेशन डिकंजेशन होता है, नॉट टू बी मिस्टेकन फॉर सर्दी में नाक भर जाता है, उसका और इसका कोई संबंध नहीं. दैट इज डिफरेंट. दिस इज हैपनिंग इवन इफ यू डोंट हैव कोल्ड, इट विल कीप ऑन हैपनिंग. आपको सर्दी नहीं है तो भी ये कंजेशन होते रहते हैं. एंड दिस इज गवर्न बाय द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ये दोनों कंटिन्यूअसली कंट्रोल होता है. अभी इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, व्हाई दिस इज हैपनिंग और व्हाई दिस मस्ट हैव बीन हैपनिंग. एवरी डे वी आर फेसिंग डिफरेंट सिचुएशंस इन द लाइफ कंटिन्यूअसली. कभी आपको स्ट्रेस आते हैं, स्ट्रेस मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा स्ट्रेस आना चाहिए, छोटे छोटे स्ट्रेस आते हैं. अरे यार गैस चालू तो नहीं है ना, वो करना है, आज गेस्ट आने वाले हैं, क्या करेंगे, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, क्या खाएंगे. मतलब स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज है. यू मे नॉट कॉल इट स्ट्रेस, बट बॉडी अंडरस्टैंड इट एज ए स्ट्रेस. छोटा सा हो गया काम, आई एम रिलैक्सिंग, हाँ अच्छा हो गया सब काम, यू आर रिलैक्सिंग. पैरासिम्पैथेटिक टेकिंग ओवर. छोटे छोटे स्ट्रेस है, sympathetic टेकिंग. दिस इज अफेक्टिंग and accordingly the nasal cycle keeps on changing. This is how it must be happening. It's a very simple thing, but still it is happening. Okay, इसके लिए है ना, ये सब सोचने के लिए ना, I'll give you one very simple exercise, practical exercise है ना. वो practical exercise क्या है ना, take a small mirror, छोटा सा मिरर, मिरर के ऊपर ऐसे रख के नाक से ब्लो कर. द मोमेंट यू ब्लो, ऑब्जर्व इट, उसके ऊपर मॉइस्चर आएगा. दोनों इक्वल जगह पे रख के ब्लो करो, मॉइस्चर आएगा. द मोमेंट द मॉइस्चर एंड ऑब्जर्व इट. दोनों पैच है ना, में से एक पैच वैनिश हो जाएगा, अनदर पैच विल टेक लिटिल लॉन्गर टाइम
to disappear. The one that is taking longer time, जो moisture जाने के लिए जिसको ज्यादा टाइम लगता है ना, that nostril is dominant. If you observe it throughout the day, तो आपको ये switching pattern शायद मिल जाएगा कि कैसे होता है. अगर दोनों सही जा रहे हैं, एक ही टाइम में वैनिश हो रहे, मे बी हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन देम, दैट विल गिव यू द इंडिकेशन दैट योर system is harmonized and you are breathing equally to both nostrils. That means you are attaining the balance. But this happens at a very small brief period तक चलते हैं. क्यों होता है? जैसे तो कि रोज के इसमें हमारे छोटे छोटे टेंशन है that are also affecting. छोटे बड़ा स्ट्रेस आने की जरूरत ही नहीं है. छोटे छोटे डे टू डे एक्टिविटीज है. बच्चे है तो अरे होमवर्क नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो भी एक काइंड का स्ट्रेस है. बड़ा स्ट्रेस भी नहीं है, इट्स अ स्मॉल स्ट्रेस, बट दैट कीप्स ऑन हैपनिंग एंड दैट गवर्न्स दिस नेसल साइकिल. तो अभी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिसन केयरफुली, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अपनी एक्टिविटी से ये नेसल साइकिल चेंज होता है एंड वो बैलेंस होने के बाद वो हार्मनी लाता है. ये जब भी ऋषिज एंड मुनिज ने जब भी देखा, योगा मास्टर्स ने क्या देखा, डे टू डे एक्टिविटीज में स्ट्रेस आने जाने से ये चेंज होते रहता है, ऐसे उनको जब भी, सो दे थॉट अदरवाइज, क्यों ना ब्रीथिंग को ही रेगुलेट करे तो हमारी एक्शंस में से दोनों बैलेंस हो जाएंगी, पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक. वी आर कॉलिंग इट सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक, दे आर कॉलिंग इट मेंटल एनर्जी एंड प्राणा एनर्जी को बैलेंस करेंगे. कैसे करेंगे? तो थ्रू ब्रेथ, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड. तो इसके लिए द ज्वेल ऑफ प्राणायाम वाज डिजाइन. व्हाट इज द ज्वेल ऑफ प्राणायाम? नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, अल्टरनेटली राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग स्लोली. बाकी वो पूरा क्रेचक का बात हम लोग नहीं करेंगे. मतलब इतना सिंपल एंड दे अंडरस्टूड कि ये दोनों जब भी तुम ये प्राणायाम, इफ यू आर डूइंग इट सिस्टमैटिकली फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यू आर अटेनिंग द मेंटल बैलेंस, माइंड को स्टेबलाइज करना. एंड दैट इज हाउ इट इज डिजाइन. दिस इज द ग्रेटेस्ट हिडन पावर ऑफ योर ब्रीदिंग. अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना है, ये मत करो, इधर से करो, ये खोलो, ये करो, दैट विल नॉट गिव यू बेनिफिट. इफ यू नो ऑल दिस थिंग्स बिहाइंड, इसके पीछे क्या राज है, व्हाट इज द पावर ऑफ दिस, इफ यू अंडरस्टैंड, नेक्स्ट टाइम टुमारो व्हेन यू डू दिस नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, रिमेंबर, you will remember and you will put your mind into it, and that will give you the benefits. And these benefits will be seen in no time. Within 6 months, you will observe a lot of things changing in your life. That is the beauty of this hidden powers of your own breathing. Okay, so नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आपको क्या क्या बेनिफिट देते हैं? स्ट्रेस कंट्रोल, इमोशंस को बैलेंस में लाना, ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम का कंट्रोल में लाना, ऑल दिस थिंग्स है ना. प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? काम बेनिफिट, तुम्हारा फोकस इंप्रूव हो जाएगा, है ना. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिटेशन. मेडिटेशन के बारे में अगर टाइम थोड़ा है, बट फिर भी आई विल गिव सम टाइम, तो वो भी हो जाएगा, है ना. एंड इडा एंड पिंगला, आपको मालूम है, ये दोनों का बैलेंस यू विल स्ट्राइक. अभी एक सिंपल देता हूं एनालॉजी, है ना, लेफ्ट नोस्ट्रिल का एंड राइट नोस्ट्रिल का. ऑल ऑफ यू नो कि लेफ्ट नोस्ट्रिल इज कूलिंग, राइट नोस्ट्रिल इज हीटिंग. गाड़ी चलाते हो ना, या गाड़ी में तो बैठते हैं, गाड़ी में दो चीज होती है, एक है ब्रेक, एक है एक्सेलरेटर. एक स्पीड बढ़ाता है, एक स्पीड को कम कंट्रोल कर, कम नहीं करता, मतलब कंट्रोल करता है. लेफ्ट नोस्ट्रिल है ना, ब्रेक की तरह है, राइट नोस्ट्रिल है ना, एक्सेलरेटर की तरह है. जस्ट थिंक ऑफ इट. एक्टिविटी बढ़ाने है तो राइट नोस्ट्रिल बढ़ेगा, कंट्रोल करना है लेफ्ट नोस्ट्रिल करेगा, लाइक अ ब्रेक, है ना. और ये दोनों अगर करेक्ट रहेगी, स्पीड कंट्रोल में रहेगा, स्पीड कंट्रोल में रहेगा, you will hit the balance. And what is that? Hitting the balance is the good health, well-being. है ना. तो ये सब चीजें समझ लें.
अभी और एक चीज इसमें थी ना, जो क्या था इंपॉर्टेंट थिंग, कि एक हिडन थिंग मैंने बोला था कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन योर ब्लड, एंड दैट इज वेरी, बिकॉज वी हैव कम टू द सब्जेक्ट ऑफ प्राणायाम, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना। सो क्या है, हमारे प्राणायाम तो बहुत सारे दिए हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम आज डिस्कस नहीं करें, हम लोग खाली ब्रीदिंग ही डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो पूरक रेचक की भाषा में भी नहीं बात करेंगे, बट कुंभक का बात करते हैं। कुंभक, बेसिकली कुंभक क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं कुंभक, सांस को रोकना। सांस को रोकना मतलब क्या है, सी देर आर टू कंपोनेंट्स है ना, एक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये दोनों के बीच में वंस यू इनहेल एंड बिफोर यू एक्सहेल देर इज अ स्मॉल गैप, थोड़ा सा पॉज है। एक्सहेल करते हो, इनहेल करने के पहले भी थोड़ा सा पॉज है, एंड दैट पॉज इटसेल्फ इज द कुंभक, दैट पॉज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज, मतलब समझना है कि कुंभक है। फिर अभी तो सिंपल है कि ब्रीदिंग इज वॉलंटरीली हमारे कंट्रोल में आ सकता है ना, जब भी चाहे तभी, टू सम एक्सटेंट। सो ये गैप बढ़ाना, इनहेलेशन करने के बाद एक्सहेलेशन होने से पहले जो छोटी सी गैप है वो आइडेंटिफाई करो एंड उसको बढ़ाओ। एक्सहेलेशन करने के बाद थोड़ा सा रुको, इनहेलेशन करने के बाद, दिस इज नथिंग बट कुंभक, यही तो कुंभक है। मैं बाकी बंद बिंद जो जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद कुछ नहीं बताता हूं, मैं ये कुंभक, एंड महर्षि पतंजलि भी कुंभक इतना ही बात करते हैं कि ये दोनों का लेंथ बढ़ाना, तो ये लेंथ बढ़ानी, बट ये कैसे है, इट्स नॉट दैट इजी। इसमें क्या है ना कि लेट अस अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। प्राणायाम में जनरली पीपल थिंक कि प्राणायाम करने से ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, नथिंग लाइक दैट। ऑक्सीजन यू गेट व्हेन यू इनहेल, यू गेट गुड ऑक्सीजन, व्हेन यू एक्सहेल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, सब ठीक है। लेकिन ये कुंभक जब भी करते हैं ना प्राणायाम में, दैट मीन्स you are increasing the percentage of carbon dioxide because you are not throwing it out. So अपने ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है, स्लाइट। ये मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि दिस इज एक्चुअली इट्स, मात्रा ज्यादा बढ़ेगी दैट इज हार्मफुल, है ना। तो जैसे ही ये मात्रा थोड़ी सी बढ़ती है तो क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो ब्रेन है ना, मस्तिष्क, इज अ लेजी लेजी ऑर्गन, वो काम तो बहुत करता है बट खुद की दिमाग को खुद का दिमाग नहीं है, इज अ वेरी लेजी ऑर्गन, वो कुछ नहीं, जैसे ही कुछ काम होगा ना ये विल डेलीगेट द वर्क टू, दूसरे को दे देगा, तुम करो ये काम, लेट मी रिलैक्स। उसको कंटिन्यूअसली ताजा तरोजा रखने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड काम होगा। जैसे ही थोड़ी सी मात्रा बढ़ गई, वो खड़बड़ा के वो जागरूक हो जाता है, ब्रेन स्टार्ट्स एक्टिवेट, एक्टिव होता है। लेकिन कितना एक्टिव करना है, इतना भी एक्टिव नहीं करना है। क्या है ना, ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई देन इट विल गिव टू द हाइपरकैप्निया बोलते हैं उसको। जैसे देखो, देर आर टू थिंग, हाइपोक्सिया एंड हाइपरऑक्सिया, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना और कम। इफ यू आर गोइंग एट अ हाई अल्टीट्यूड तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन नहीं कम होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने से आपको तकलीफ होती है। आपने सुना है कि लेह लद्दाख में गए या तो हाई एल्टीट्यूड में गए तो प्रॉब्लम होता है, दैट इज हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कम होता है। डाइवर्स जो होते हैं ना, डिप सी ड्राइविंग करने के, दे आर गोइंग बिलो द सी लेवल, तो उनको हाइपरऑक्सिया होने की संभावना होती है। ये दोनों चीजें जनरली वे आर वेरी रेयर बट ऐसे होता है। वी आर नॉर्मली वी आर एक्लेमेटाइज वेयर वी आर लिविंग एंड वी डोंट फेस हाइपरऑक्सिया और हाइपोक्सिया, हमको कोई तकलीफ नहीं। बट कुंभक अगर करते हैं एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली, इसलिए बोलते हैं ना कि इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड, इसलिए उसने कहते हैं कि वो देना है ना कि प्राणायाम ठीक से करे तो सब रोग दूर करते हैं, प्रॉब्लम करें तो इट इनवाइट्स ऑल काइंड्स ऑफ
रोग। रोग मतलब क्या है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ गई तो हाइपर कैप्निया हो जाएगा। हाइपर कैप्निया, न्यूरॉन्स विल स्टार्ट डाइंग। सो इसलिए हमारी सब प्रैक्टिसेस में क्या दिया हुआ है? सहज कुंभक, टू योर कैपेसिटी। तो ये कुंभक के साथ बिल्कुल खेलना नहीं, स्पेशली अंतर कुंभक के साथ तो बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए। कुंभक करने से, थोड़ा सा कुंभक से डेफिनेटली बेनिफिशियल है, नहीं तो कुंभक सिखाते ही नहीं थे। कुंभक से बेनिफिट डेफिनेटली होते हैं, बट इतना भी नहीं हो कि अगर न्यूरॉन्स मर गए या तो कुछ हो गया तो डेफिनेटली इट कुड बी फैटल ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, एंड नहीं तो न्यूरोलॉजिकल बैलेंस कंप्लीटली बिगड़ जाएगा। दैट इज द वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, है ना? तो ब्रीदिंग के अंदर जो हिडन पावर है कितनी रखनी है कि ब्रेन को कंटिन्यूअसली हिलाते रहने के लिए, उतना ही काफी है, बस ज्यादा उसका ये नहीं करना है। फिर बहुत सारे आपके भगवत गीता में और इसमें बहुत सारे श्लोक आपको मिलेंगे, बट अभी 10 minutes आर देयर। सो आई थिंक लेट अस टेक वन स्मॉल प्रैक्टिस ऑफ द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आई एम कॉलिंग इट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैं कुछ मेडिटेशन प्राणायाम कुछ नहीं, किसकी बात नहीं कर रही। आई विल गिव यू वन सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यू ऑल नो इट, दैट ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज प्राण धारणा। आप बोलेंगे ये क्या प्राण धारणा, तो हमको मालूम है, वी नो प्राण धारणा। क्या सीखेंगे, क्या प्राण धारणा सिखाता नहीं हूं। आई एम गिविंग यू द हाइंडसाइट, इसके पीछे की जो है ना प्राण धारणा की, थोड़ा सा बताता हूं। आई विल टेक 5 minutes टू डू, एंड लास्ट के 5 minutes यू विल डू। 5 minutes भी नहीं, 2 minute करेंगे तो भी बहुत है मेरे लिए। आई विल एक्सप्लेन इट एंड देन वी विल एंड द सेशन एग्जैक्टली एट 6 o'clock। आई विल एक्सप्लेन प्राण धारणा। इन माय ओपिनियन, बिफोर गोइंग फॉर एनी प्राणायाम, कुछ भी मत करो, मास्टर दिस प्राण धारणा। जिसको प्राण धारणा के ऊपर मास्टरी आई, ही बिकम्स अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग। प्राणायाम का भी मास्टर हो जाएगा, ही विल बिकम अ मास्टर ऑफ मेडिटेशन, धारणा, ध्यान, सब कुछ आ जाएगा। बट ये सिंपल एक्सरसाइज है ना, वी इग्नोर प्राण धारणा। अभी प्राण धारणा हमें कैसे सिखाया गया है कि सांस ले लो, खाते हुए सांस काउंट करो, 1 से 2 3 10 15, बस। नाउ प्राण धारणा द्वितीय करो, सांस को फील करो इनर वॉल्स के ऊपर। प्राण धारणा तृतीय, गर्म सांस, ठंडी सांस, प्राण धारणा का एक्सरसाइज हो गया। वी आर डूइंग इट रिचुअलिस्ट। जैसे वो पूजा वाला जो ये आते हैं, गुरु जी आते हैं, है ना, वो केशवाय नमः, नारायण नमः, शिवाय नमः, ये सब बताते हैं। हम लोग भी ब्लाइंडली इधर से उधर से वो बात करते करते बोलेंगे, एक हो गया, पानी इधर डालो इधर डालो, फिर वो बोलेंगे वो सुपारी के ऊपर पानी डालो, इसके ऊपर ये डालो, ऐसे डालो, ये फूल डालो, ये डालो। वी आर डूइंग इट रिचुअलिस्टिकली, वी आर डूइंग द पूजा, वी डोंट नो व्हाट इज टेलिंग, वी आर जस्ट फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन। सेम वे प्राण धारणा हम ऐसे ही करते हैं क्लास में, सर देते हैं या टीचर देते हैं, एंड वी आर डूइंग केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, यही हमारा चलता है। प्राण धारणा प्रथम प्राणायाम, हाई इट इज गिवन। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई इट इज गिवन। काउंटिंग मत करो, काउंटिंग जरूरी नहीं हो, तो स्टार्टिंग का पॉइंट है, फॉरगेट, यू नो, काउंटिंग नहीं, सिर्फ बैठना, जस्ट सिट, वॉट एवर पोजिशन, चेयर में बैठो, किधर बैठो, वॉट एवर पोजिशन, टेक योर आधार आसन, सिट एंड जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। डेली एक्सरसाइज करना, हाउ दैट ब्रेथ इज कमिंग, वेयर इट इज टचिंग, यही तो सिखाया है। बट इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। माइंड को इन्वॉल्व करो, माइंड को इन्वॉल्व करो। यू विल फाइंड आफ्टर 5-6 ब्रेथ्स के बाद यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। मन भटक जाता है, दैट इज द नॉर्मल। माइंड को कभी तुम खत्म नहीं करोगे, माइंड विल वेवर, वो चला जाएगा दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, कहीं पे भी चला जाएगा। उसको वापस लाना है,
उसको बोले ना, घोड़ा जैसे भाग जाता है, लगाम से खींच के वापस नोस्ट्रिल पे लाना है। तृतीय का तो एक्सरसाइज लंबा ही रह गया, खाली आने जाने का जो है, देखो आ रहा है जा रहा है आ रहा है, व्हाई इट इज गिवन so that when you are focusing only and only on the breath that is coming in going out, के ऊपर आ रहा है मेरे नोस्ट्रिल्स के, उसको टच कर रहा है टच कर रहा है, फील कर रहा हूं मैं, फील कर रहा हूं, ये टच कर रहा है, यू आर डूइंग द एकाग्रता। और एकाग्र का मतलब क्या है? वन पॉइंटेडनेस, एंड दैट वन पॉइंटेडनेस इज where your breath is touching your inner nostrils, that is the one pointedness. एक अग्र पे जब ये आ जाओगे, other thoughts will not come to your mind, so mind is not getting disturbed. I'll do one thing, I'll show you one. टँकर घेतले त्याच्यात हा? ते कपच्यासाठी आहे सो स्लीप करण्याची We'll take the questions. I'll show you one small clip I'll share with you. You must have seen it many times, but just have a look at it. I will share it. Just watch it. अरे यार, आने से पहले छोले बॉईल कराती। बेटी को हैंकी भी नहीं दिया, उसको कोल्ड हो रहा था इतना। रात को क्या बनाऊं खाने में आज? प्रेस वाला आज भी कपड़े नहीं लेके गया। यार अमेजोन से ऑर्डर ही नहीं आया अभी तक, कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया? आज भी मेड नहीं आई, पता नहीं कल आएगी कि नहीं आएगी। आने से पहले मशीन में कपड़े डाला थी तो अभी तक धुल भी जाते। कल इनको सिलेंडर बुक कराने के लिए बोला था, पक्का भूल गए होंगे। अरे यार सॉकेट खुला रह गया, कहीं बच्चा हाथ तो नहीं डाल देगा। बस 1 महीना और, फिर मस्त फिगर बना लूंगी। अरे यार आने से पहले छोले बॉईल कराती। आया सुनने को, दिखाई दिया कि नहीं? लेट मी नो। यस सर। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये आपने बहुत जनों ने देखा भी होगा, ये क्लिप मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं, दिस इज नथिंग न्यू, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। पहले 2-3 इसमें, उसके बाद में वो बहुत सारे विचार आने को चालू होते हैं। देन प्राण धारणा अगर नहीं होती है तो आगे जाके प्राणायाम क्या होने वाला है? तो ये सटलर लेवल पे, सूक्ष्मतर लेवल पे लेके जाने के लिए ये सब चीजें आहिस्ते आहिस्ते होती है। फिर ये एक बार यू अंडरस्टैंड कि ये हो रहा है, तो माइंड को और सटल बना, उसको और सूक्ष्म बनाने के लिए क्या बोलते हैं? नाउ ट्राई टू फाइंड आउट इनर सांस जो आता है अंदर, वो ठंडा है, बाहर जाने वाला गर्म है। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। जब भी वो मिल जाएगा, और अगर वो मुझे मिलना है ऐसे करके करेंगे तो माइंड भटकेगा नहीं, अभी तक वो ठंडा और गर्म का मुझे नहीं एहसास हो रहा है, होना चाहिए, होता तो है, थोड़ा सा फर्क है, बट वो फर्क कितना मामूली है, हार्डली, वो तो मेजर भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा मामूली है, फिर वो मुझे पकड़ना है। कोमल तालू पे उसको फील करो बोलते हैं हम लोग, हो गया, क्योंकि ये क्या खाली एक टेक्निक दिखाने के लिए हम सीख रहे हैं। फिर वो कोमल तालु पे हो जाना मतलब क्या? यू आर गोइंग टू द मोर सेटलर लेवल पे जा रहे हैं। एंड अभी जब ये मास्टर करेंगे ना, उसके बाद में देन व्हेन यू सिट फॉर द प्राणायाम, यू कैन डू, प्राणायाम हो जाएगा। प्राणायाम के बाद में धारणा है, धारणा इज वन पॉइंटेडनेस, आहिस्ते आहिस्ते एकाग्रता, आगे की स्टेट कंटिन्यूटी ऑफ दैट एकाग्रता, ये कंटिन्यूटी एकाग्रता की हो जाएगी, उसके बाद में ध्यान जमेगा। ये तो बहुत लंबी सीढ़ी है, तो पहले इसको मास्टर करो कल से। सो वी कैन डू वन थिंग, अभी जो क्लिप देखी, ऐसे कितने आपके मन में आते हैं नहीं आते हैं, ये सब इमेजिन करके। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सिट वेयर वी आर सिटिंग, आराम से। वो जो सूचना तो मैं नहीं देता हूं कि क्या ऐसे बैठो, आधार आसन जो आपको चाहिए ले लो, जैसे बैठना है बैठो, स्थिर हो जाओ माइंड को, एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। I will just take 1 second, I will not say anything, just give me 1 moment. अभी आंखें बंद करो,
सिर्फ फोकस करो आने वाली सांस के ऊपर कैसे आ रहा है. आई विल गिव यू 90 seconds, 1.5 minutes. Your time starts now. Okay. Slowly open your eyes. This must have felt like an eternity. 90 seconds भी बैठना. You don't have to tell me. Tell yourself. How many of you were able to keep your focus for 90 seconds? पूरा अपने सांस के ऊपर. If you are done it, you are masters. If you are not done it, doesn't matter. बट ये जस्ट थोड़ा सा एक्सरसाइज था कि समझने के लिए कि 90 सेकंड्स कितने जन को ऐसे भी मन में आ गया होगा ही कि नहीं 90 सेकंड हो गए कि 90 सेकंड ऐसे भी मन में आया होगा. अरे बाप रे अभी तक नहीं बोला सर ने अभी नहीं बोला बाकी भी सस. बट व्हेन यू डू दिस 90 सेकंड से 2 मिनट 3 मिनट्स ऐसे करके स्लोली स्लोली व्हेन यू डू इट यू विल मास्टर प्राणायाम. एंड व्हेन यू विल मास्टर प्राणायाम प्राणायाम करने की कोई जरूरत. दिस इज प्राणायाम इटसेल्फ बिकॉज दिस इज फोकसिंग. दिस इज फोकसिंग. दिस इज द मास्टरी ओवर योर ब्रीदिंग. ये करने के बाद हम आगे जा सकते हैं. ओके सो थैंक यू वेरी मच. Yeah, ये thank टाइम you. आपने जो दिया thank you very much for the time given to me. It's exactly 6 o'clock over here. So I end my talk. और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है किसको कुछ पूछना है तो पूछो. Yes, sir. Sir, we'll first go through the vote of thanks and then we'll open the floor for question answers. अरे उसका Manisha, क्या जरूरत over है. to you. इसका Sir, भी it's fine. It's ठीक our है protocol, sir. करो करो. Manisha, please, over to you. गो अहेड. Manisha, unmute करा. सर वोट ऑफ थैंक्स तो बनता है जरूर बनता है बिकॉज this online platform we have our online participants want we this was conceived to introduce all the Yog Vidya Niketan Guruji's uh, all the people who are carrying forward Guruji's legacy. And it's especially like in his style. You just explain like in Guruji's style how he used to explain with examples, giving simple examples like how your breath is like acceleration and break. The simple things you explained with so many easy examples. It was very easy to understand. I'm sure our participants are going, next time they are going to be in the class, they are going to focus on all these things that you have told. The topic hidden power behind the breath was
aptly explained by you. Just simple practices like nasal cycle changes with our more concept that nasal cycle changes with our emotions, our stress. Simple stress also can change the nasal cycle. Breath is breath balances that mental energy and pranic energy. This was also we learned today. And the practice how to increase your kumbhaka and simple practice of pranadharana, which we are practicing every day. So how to mindfully go through it, how to mindfully approach that pranadharana. That was also very beautifully explained. So thank you for all the things that we are taking away from you. And I also want to thank my team, Sonali, who took the prayers, and Dipti for technical management, everything, Pooja ji for introducing you, and all the participants for joining the sessions. Their attendance increases it encourages us to have such sessions. So thank you so much. We are deeply grateful for your presence. Thank you, या sir. थैंक यू। क्या है ना कि 1 आवर का जो है ना, इसमें एक्सप्लेन करना अगर साइड से लेके जाएंगे तो देर आर सो मेनी थिंग, इमोशंस, ओनली इमोशंस के ऊपर भी, इमोशंस एंड ब्रेथ के ऊपर भी 1 घंटे तक बोल सकते हैं, स्ट्रेस के ऊपर, बट दैट इज नॉट द आइडिया। आइडिया इज टू गिव द सिंपल टेक्निक्स एंड टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल वे। आई होपफुली आई हैव डन माय जॉब। सो अभी किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो लेट मी अंडरस्टैंड इफ आई कैन Yeah, आंसर देयर। आई कैन सी 1 second। yeah, we are opening the floor for question answer Yeah, segment. yeah, sure, Everyone, sure. please. Lot of thanks, and I'm thankful for the thanks. Okay. If you have any questions, please unmute yourself or raise your hand so Yeah. that we can take up your questions, please. Somebody, Sheetal Tembe is asking how increase of CO2 due to Kumbhak helps to activate brain. How it helps brain function. Yes, I told you, no? कि activation of brain function means what actually happens when you are increasing. See, carbon dioxide, it's a normal process. क्या normal process है? I'll just explain briefly. External inspiration and internal inspiration are the two things. External inspiration means what? You're taking the air inside in your lungs, alveoli जो है वहां पे गैस एक्सचेंज होता है, एंड दैट एक्सचेंज इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वहां पे होता है, एंड दैट ऑक्सीजन इज कैरिड टू एवरी सेल इन योर बॉडी। वहां पे जो एक अगेन एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है एंड ऑक्सीजन दैट इज टेकन, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट थ्रू योर एक्सलेशन। हम जब भी निश्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड मेजरली जाता है, ऑक्सीजन अल्सो जाता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड हम मेजरली वहां से थ्रो करते हैं। व्हेन यू आर डूइंग कुंभक, यू आर एक्चुअली होल्डिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज to be thrown out, you are holding it, and in the next moment also this carbon dioxide थोड़ा सा ब्लड में इंक्रीज होता है। अभी इट इज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना नहीं चाहिए, बट इंक्रीज होने के फायदे क्या है? जैसे ही ब्रेन सेंटर्स में जाते हैं, दैट टाइम दिस इज अ थिंग विच इज नॉट वांटेड। अभी जो थिंग नॉट वांटेड है तो अलर्टनेस आता है, दैट इज हाउ द ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड। बट ऐसे भी नहीं आना चाहिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में आके कुछ डैमेज हो जाए, तो थोड़ी मात्रा में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। सो इफ टाइम परमिट्स आई जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन। देर आर केमोरिसेप्टर्स इन अवर, यहाँ पे ये रीजन में हमारे बहुत सारे एक्सरसाइजेस जो है हम जो करते हैं मुद्रास वगैरह, तो देर आर कैरोटिड बॉडीज एंड सम बैरोरिसेप्टर्स एंड केमोरिसेप्टर्स इन कैरोटिड बॉडीज में होते हैं। दिस इज थोड़ा सा साइंटिफिक है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन समझाने के लिए। बैरोरिसेप्टर्स का काम क्या है?
कि ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन करना। और केमोरिसेप्टर्स का क्या है कि ब्लड का पीएच जो है, ब्लड का पीएच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 7.38 या 7.4 तक मेंटेन करना इज अ जॉब। जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो ब्लड एसिडिक बनता है। जैसे ही ब्लड थोड़ा सा एसिडिक हो गया, ये केमोरिसेप्टर्स इमीडिएटली ऊपर सिग्नल भेजते हैं कि दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन। अभी डेंजरस सिचुएशन है, इमरजेंसी है, तो ब्रेन खड़बड़ा के जागरूक होगा ही ना। दैट इज द आइडिया, दैट इज हाउ दिस हैपन्स। ओके, उसको थोड़ा सा जगाने के लिए एंड टू एक्टिवेट इट, अदरवाइज नॉर्मली ये नहीं होता है ना। सो जनरली वी थिंक कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से फायदा होता है, तो ये कुंभक का ये थोड़ा सा फायदा है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए। देखो स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है, जब किसी का गला घोटने के लिए दबा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेन में न्यूरॉन्स स्टार्ट डाइंग, विच इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड दैट इज हाउ द मैन डाइज। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो Yes, sir. Oh, One, sir, next. just one question from me. Hello. Sure. Firstly, thank you, sir, for the wonderful session. Actually, I Hmm. wanted to know what is the logic behind the ratio 1:2, 4:2 in pranayam. Is there any logic, or why is it set this way? पूरक रेचक का Yes, sir. पूरक एंड रेचक का ना, Yes, sir. रेचक should Yes, be sir. Yes, sir. रेचक should be longer than the पूरक, right? That is Yeah. what you want to ask, right? 1:4:2. Yeah, that we do in pranayam. या प्राणायाम में जब भी कुंभक लगाते हैं तभी रेचक और इसका रेशो का ना, दैट इज Yes, sir. सी। इसमें कैसे है ना कि व्हेन द सी हमारे जो लंग्स है ना, लंग्स में अल्वियोला है एंड देयर ऑलवेज इज सम रेसिडुअल एयर। रेसिडुअल एयर मतलब लंग्स की सब हवा तुम कभी भी निकल नहीं सकते, थोड़ी रेसिडुअल वॉल्यूम रहता ही है, थोड़ी मात्रा में थोड़े से हवा हमेशा अंदर रहती है। एट द बॉटम ऑफ दिस लंग्स के जो नीचे के पोर्शन में रेसिडुअल एयर ऑलवेज रिमेन्स। सो इसका फायदा क्या है कि व्हेन यू आर एक्सीडिंग, तुम जब भी रेचक बढ़ाते हो तो ज्यादा से ज्यादा हवा बाहर फेंकते हो, कंप्लीट तो नहीं जाएगी, बट उसमें से जितनी ज्यादा हवा आप बाहर फेंकोगे उतना वो फ्रेश एयर अंदर आएगा। दैट स्टेल एयर, जो बासी बोलेंगे तो स्टेल एयर इज गेटिंग चेंज्ड विद द फ्रेश एयर, दैट इज द थिंग। एंड कुंभक लगाने का वही है, कुंभक का रेशो जो हम लगाते हैं जो 2 और 4 का, वो उतना ही रेशो लगाना है। और उसके बाद में देखो रेचक हमेशा ज्यादा रहेगा। कुंभक तुम लगाने के बाद रेचक बढ़ाने से यू आर थ्रोइंग मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड आउट, विथ दैट residual air and fresh air is you are taking in, so that the harm is not caused to the brain. That is the idea. So रेचक हमेशा ज्यादा रहने का फायदा, इसलिए कपालभाति जब भी करते हैं ना, सो मैक्सिमम एयर। कपालभाति में देखो कि तुम एक्टिव एक्सलेशन है एंड पैसिव इनहेलेशन है ना। इनहेलेशन अपने आप हो जाता है एंड एक्टिव तुम एक्सलेशन करके वो ज्यादा से ज्यादा हवा। दूसरी एक क्रिया है प्राण प्रच्छादन क्रिया, जब भी तुम जोर से हवा बाहर फेंकते हो ना, सो दिस रेसिडुअल एयर इज थ्रोन आउट एंड द फ्रेश एयर इज रिप्लेस्ड। सेम थिंग इज हैपनिंग एट द कंटिन्यूअस लेयर इन द प्राणायाम। दैट इज द आइडिया ऑफ एक्सीडिंग। और ये कुंभक का रेशो थोड़ा आगे पीछे करने का हेतु ही वो है कि ब्रेन को देखो, एक सिंपल सी चीज हमेशा याद रखो, आप अगर प्राणायाम करना है तो प्राणायाम कम से कम 5 to 7 मिनट्स तो मिनिमम होना चाहिए प्राणायाम। एंड ड्यूरिंग प्राणायाम योर ब्रीदिंग रेट शुड कम डाउन। नॉर्मल 12 to 15 है ना, सो प्राणायाम करने के टाइम में योर ब्रीदिंग रेट शुड कम टू अराउंड 6 to 7 या 5 तक भी कभी कभी आ सकता है। वैसे इतना नीचे जब भी आ जाएगा एंड विथ दिस ब्रीदिंग कम करने के बाद इफ यू आर डूइंग इट फॉर 5 to 7 मिनट्स, अगर आप प्राणायाम करते हैं, देन ओनली यू आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द प्राणायाम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आफ्टर डूइंग 5 to 7 मिनट्स का प्राणायाम करने के बाद इफ यू आर फीलिंग फ्रेश, दैट मीन्स यू आर ऑन द सक्सेस पाथ। इफ यू आर फीलिंग थोड़ा सा डिजी लगने लगा या तो थकान आ गई 5-7 मिनट के बाद, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ये ध्यान में रखना है।
You should feel fresh after pranayam and your breathing rate should come down. I'll tell you, ब्रीदिंग रेट है ना, कभी कभी बीच में चेक करो. हमारा जो पल्स रेट है ना इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर हार्ट रेट है ना. तो पल्स रेट नॉर्मली कितना रहता है? 72 है ना. 72 का पल्स रेट ऐसे प्रैक्टिस के बाद अराउंड 65-60 तक आएगा. दैट मीन्स योर पैरासिम्पैथेटिक इज एक्सट्रीमली गुड. यू विल नॉट हैव मच स्ट्रेस एंड योर हेल्थ विल बी गुड. बट कंटिन्यूअसली ऊपर रहेगा तो 80, 70, 75, 80 के ऊपर अगर कंटिन्यूअसली रहने लगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपरटेंशन, तो कंटिन्यूअसली रहने लगा ना तो यू विल नॉट फील, मतलब थोड़ा सा कॉशन है कि अपने को ब्रीदिंग रेट कम करना है. एंड दैट वे द प्राणायाम विल हेल्प यू. दैट इज द आइडिया. होप आई Thank you so आंसर्ड. much, sir. Yeah, Yeah. thank you, sir. Sorry, everyone, due to time constraint, we will have to close the session now. But thank you, everyone, for joining in. Before everyone proceeds, I would like to announce our next session that is specifically for our kids because, you know, it's summer holidays coming in and we definitely love our kids. So that's why we are planning to keep a session on April 10th. That is again the Friday. And that will be specifically for the kids. So if you have any kids around, your kids or maybe in neighbors or whoever, we would like to welcome them and have a quick fun session for them, and we will be conducting those. So thank you everyone for joining in. Let's close our session with one Omkar. Please be seated. Eyes closed. Focus on your breath. Inhale deeply. Please open your eyes. Thank you everyone for joining in, and we will regroup on April 10th again. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. It was a very nice session. Thank you. Thank you. Thank you so Thank much, you. sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, So the kids time is session is now- regarding what? For what? Hello. Sorry. Thank you, sir. Kids session is for means For all the Um, children about 8 years, yeah. okay, and it is for means pranayam meditation or asanas related to what? It's fun activity. It's I would say it's a mixture of fun activities and yoga abhyas. Yeah, Okay, thank you very much. no problem. All right. Yeah. All right, I'll end the session. Thank you, everyone. Bye.